Good morning, everyone. I am Kirti Jain, Joint Director, AMH SSC. We are celebrating Amrit Mahotsav, Azadi Ka Amrit Mahotsav, independence of 75 years. On this occasion, we would like to share that how AMH SSC is working towards skill development initiatives to make India as a skill capital. In this session, we would like to cover how these skill initiatives are beneficial to our youth and industries. Now, I would like to thanks to our senior officers those who always encourage and support us to conduct such initiatives for the betterment of the society. A very thankful to Dr. Rupak Vasisht, CEO and DG of AMH SSC, Smriti Dwivedi, she is Director AMH SSC, Ashish Srivastava, he is Director Operations, and Atul Madan, he is Director and Training. Now, I would like to a warm welcome to our guest presenter, and he has having a rich experience in apparel industry, Shri Ajit Lakra ji. A warm welcome, sir. Thank Namaskar. you. Thank you. Shri Ajit Lakra ji is Managing Director in Superfine Limited, Ludhiana, a knitted fabric and garment manufacturing company. He is having 40 years of rich experience in apparel industry. He is also a president in Ludhiana Knitters Association and head textile division Federation of Industrial and Commercial Organization of Ludhiana. Sir, I request you have a very rich experience in the garment industry. It would be great if you share your experience and thought that how these skill initiatives are beneficial to the youth and how your apparel industry is facing challenges for the scarcity of skilled manpower. Thank you, Kirti. Garment industry, the apparel industry or textile industry broadly, which we call, has a very good history in India. But the development which, our country, the size of our country and the potentials we have in terms of availability of raw materials, different kind of yarns, manpower and all that, our industry could not develop to that level that it should have been. When, we compare it with a country like Bangladesh and the Vietnam, of course, China is much ahead of anybody. So what I'm trying to say is that India still has a very wide scope, very big potential. And these days, especially because of Corona, and many other geopolitical reasons, the world over markets are drifting away from China. So this has become an opportunity for India. When people are inclined to shift from China, so India becomes, after Bangladesh, India becomes the right place for them to shift. For that matter, because when we say Bangladesh, Bangladesh is a country which is almost full now to their capacity because they have limited resources, limited manpower, of course, good manpower, efficient manpower, but they are deficient in the availability of yarns and raw materials which are very necessary for the textile industry. So that way India is much better because we have rich cotton here, we have synthetic yarns availability here, good spinning mills making good quality of yarns here. Of course, manpower is there where, your role comes in that we have to skill them up. There is a manpower availability in abundance in the country, but skilling is a main issue. Whenever you ask me about my experience over 40 years, till now, I started in 1980. Today we are sitting at 2021. Skilled labor availability has always been an issue. It's not that we want 10 people, we just tell them, bring them here, so we immediately get them. No.
we get people, but we have to test them for many days, who is skilled and who is not skilled. So that means today's topic of skilling is much more important to grab the opportunity which India is now poised to have it. What is needed for India to have a big jump in exports or in the domestic market? Domestic market, as you all know, is a very, very big market in India. Just leave this time of 1.5 years when we had Corona and there was a deep slump in the marketing, the sales of the textile products. So this is a special reason. And God forbid, we all pray that the third wave which we are apprehending should not come. Then, according to my vision, if nothing happens from next financial year, April onwards, India is going to see a big, big boom in the textile industry for two reasons. As I said, that the Indian market is a very, very vast, big market. It is still opening up. As the purchasing power of the people increases, the demand increases, naturally the production has to be compensated according to the demands. So if everything goes well, then from next year onward, you will see the boom in the export market as well as the domestic market. Now coming to how to catch it. Number one, technology upgradation. Because I started with the Ludhiana made absolutely crude type of machines, which were Ludhiana made. We were not having any imported machines at that time. But those machines were also very useful as per the demand, as per the whatever quality we were making, it was being consumed because there was a demand. Later on, some imported machines started coming in. So when the imported machines came in, then we faced the same problem, how to run them, because there are no operators who could understand the imported machines and run them properly. So skilling has always been an important subject and an issue which is going on till now. So to the Skills Development Council, although you have launched so many programs, and I have also started one program in Ludhiana, as you are aware. The mobilization of candidates also is a problem. So there is a need to develop a department who should go to the villages, who should go to certain areas where the unskilled labor is dwelling, to tell them, because they are not aware what type of course we should take and what will be our earning when we get skilled and how much time will it take to get skilled up. This preliminary information is very, very necessary, because when I opened a skill development center, we were always having problem how to mobilize the candidates. We were not having, although people are asking for jobs when they come here, but they don't know what to work with. So mobilizing is a big, big factor. And when these students come in, so there has to be a aptitude test, which probably, I don't know, your program must be having incorporated this kind of aptitude. Means a particular candidate is fit for which job, which interest does a girl or a boy has to become a tailor, to become a checker, to become a cutter or whatever. So some intelligent official of the industry should talk to those candidates and try to understand their attitude and aptitude, that where they are interested in. So that becomes little easier for them to adapt and for us to train them faster and successfully. These days in the industry, especially I am talking about Punjab, Ludhiana, because every sector has a different
problem. Certain areas now, the industry is coming up in UP and Bihar also, but we depend upon those migratory labor from UP to Bihar, so that if the industry is going to open there, it will be available there. मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ whatever I spoke just now, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है. ये पेंडेमिक जो अभी हुआ उसके बाद इसका स्कोप और बढ़ गया है मेरे विचार में, कि चाइना से लोग थोड़े खफा हैं. चाइना से बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्शन सेंटर भी हटा रही हैं. दे आर शिफ्टिंग. वो वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे अभी स्कोप कम है. पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते लोग. तो इंडिया इज अ प्लेस जहां पे बहुत बड़ा स्कोप है. इंडिया में यार्न्स की अवेलेबिलिटी, फाइबर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ उनकी अच्छी क्वालिटी की चीजें, चाहे सिंथेटिक है, चाहे 100% कॉटन है, चाहे ब्लेंडेड है, ये चीजों की अवेलेबिलिटी इन अबंडेंस है. जो बेसिक रॉ मटेरियल होगा तो हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे. तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें अगर वर्ल्ड लेवल पे आना है और हमने अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है एक्सपोर्ट में या डोमेस्टिक में, तो हमें किस चीज की जरूरत है. एक तो हमारे को टेक्नोलॉजी की जरूरत है. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, जिसमें 10 to 15% सब्सिडी मिलती है. तो उससे जो है बहुत सा जो लोग हैं, जो पुराने यूनिट हैं या नए यूनिट भी लग रहे हैं, वो इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं. चाहे वो सिलाई की मशीन हो, चाहे निटिंग मशीन हो, चाहे प्रोसेसिंग की हो. डाइंग एंड प्रोसेसिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो भी आप गारमेंट बनाते हो, चाहे वोवन का कपड़ा है, चाहे निटेड कपड़ा है, उसको हमने निट करके डाइंग करनी है. डाइंग के बाद उसकी फिनिशिंग करनी है. फिनिशिंग के बाद उसकी और बहुत से प्रोसेस हैं, कहीं एम्ब्रॉयडरी है, कहीं प्रिंटिंग है. सो वो काफी मशीनें जो है इंडिया में भी बनने लग गई हैं, इंपोर्टेड भी बहुत अच्छी आती हैं. तो हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी को लाना बहुत जरूरी है, सो दैट वी आर एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट. जो भी एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंट्रीज की, उनकी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को भी हम मैच कर पाए. और जब टेक्नोलॉजी आपके पास है, मार्केट हमारे पास है, कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है और भी ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में और भी ग्रो करेगी. और एक्सपोर्ट की मार्केट तो है ही बहुत बड़ी है. जो चाइना से हटेगा, जब बांग्लादेश उनको फीड नहीं प्रॉपर कर पाएगा या उनकी कैपेसिटी से ऊपर होगा, तो इंडिया इज अ राइट प्लेस वेयर वी कैन डू लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो हमें जरूरत क्या है, स्किल डेवलपमेंट की. स्किल डेवलपमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्यों अगर स्किल्ड वर्कर है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बेटर आएगी, और हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस तभी बनेगी. अगर बांग्लादेश में एक टेलर 1 घंटे में 25 गारमेंट बनाता है, तो इंडिया में अगर 15 बनाएगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी ना. तो इसलिए हमें स्किल का मतलब है उसमें एफिशिएंसी, उसमें क्वालिटी कॉन्शियसनेस, कि क्वालिटी अच्छी कैसे बननी चाहिए, एक तो टेक्नोलॉजी के कारण, एक एफिशिएंसी आपकी वर्कर के कारण. तो उसके लिए जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सुन रहे होंगे, या हम एसोसिएशन में भी जब मीट करते हैं, तो इसी चीज पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें अपनी फैक्ट्रियों के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर परमानेंट बना लेने चाहिए, जो बहुत से लोगों ने बना भी लिए हैं. तो अनस्किल्ड लोगों को मोबिलाइज करने के लिए वो आपकी काउंसिल को भी इस पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देनी चाहिए, कि हमें अनस्किल्ड लोगों को मोबिलाइज करके उनको पहले उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट लें, ताकि ये इनका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि इसमें बहुत सी फील्ड हैं जिसमें हम इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं. जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, फिर अप्रेंटिसशिप का कोर्स भी होता है, कि इनको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन विच फील्ड द स्टूडेंट हैज एक्सेप्टेड, उसके हिसाब से वो करके फिर इनका एक टेस्ट लिया जाता है, कि इनको टेस्ट लेके भी क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है काम के लिए, फिर इनको हमें जॉब देनी चाहिए. और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली अपैरल इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है
विच इज लेबर इंटेंसिव। इसमें बहुत सी लेबर की जरूरत है। एफिशिएंसी तो हो सकती है मशीनों से, लेकिन एक मशीन पे एक ही वर्कर बैठेगा उसने, इसलिए इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ी है, जो हमारे कंट्री के लिए आज एक बड़ी जरूरत है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। एम्प्लॉयमेंट तभी होगी कि अगर हम टारगेट करेंगे कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने अपनी डोमेस्टिक मार्केट की सेल्स बढ़ानी है, हमने नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हमें क्वालिटी की चीजें बनानी है, नए फैशन की चीजें बनानी है, जो बेसिक है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो ऐसा जब हम इंडस्ट्री के लोग सोचेंगे तो नेचुरली ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट होनी है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो मेरे ख्याल में नक्शल में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं स्कोप इज वाइड, तो हमें बिल्कुल लुक बैक नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इस वक्त जब मंदा है या काम कम है, दिस इज द राइट टाइम टू सी अवर डेफिशिएंसीज। हमें देखना है कि हमारी फैक्ट्रियों में कमी क्या है, उसको कैसे ऊपर लाना है। चाहे वो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की बात है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे स्पेस मैनेजमेंट की बात है, चाहे लाइनों की बात है, हमने अपनी प्रोडक्शन को किस तरह लेके जाना है। प्रोडक्शन की ऐसी एक टेक्निक होती है कि अगर आप अलग अलग लोगों को कोई काम देते हो उसमें एफिशिएंसी नहीं आ सकती है। एक लाइन प्रोसेस होता है, एक कटिंग हो गई, आपने यहां से फीड किया और पैक होके पीस बाहर आए, उसमें एफिशिएंसी और क्वालिटी बहुत बेटर आती है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। वी हैव डन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बट अल्टीमेटली व्हेन वी स्टार्टेड ये प्रोसेस जब हमने शुरू किया लाइन का, ये सबसे बड़ा कामयाब सिस्टम बना, जिससे रिजेक्शन कम, क्वालिटी बेटर, एफिशिएंसी और उसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आती है। क्या फैशन डिजाइनर का क्या स्कोप है? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास बच्चे काफी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ऑलमोस्ट हर महीने आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से। तो मैं बच्चों को खुद एड्रेस करता हूँ जब वो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, या जब पहले आते हैं तो फर्स्ट डे भी मैं उनको एड्रेस करता हूँ। मैंने एक चीज देखी है जो मेरे को पसंद नहीं आई है। तो अगर सपोजिंग 15 बच्चे आए हैं ना, तो उसमें से ना 12 बच्चे लगते हैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग एक लफ्ज ऐसा है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि ये मैं फैशन डिजाइनिंग मैंने करनी है। अब करनी किसके लिए है? फैशन डिजाइनिंग एक समझिए एक इंडस्ट्री है, सपोजिंग वहां पे 1000 बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनकी चाहे 10,000 15,000 पीस की प्रोडक्शन है, 4-5 स्टाइल चल रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनर कितने होंगे? 2 या 3। 1000 के पीछे 2 या 3। वो भी कईयों में नहीं है। उसका कारण बताता हूं। सपोजिंग एक ब्रांड ने किसी को ऑर्डर दिया, तो ब्रांड क्या, जो आज दुनिया में अच्छे ब्रांड है ना, उनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है। बच्चों को ये समझ आनी चाहिए। दे डोंट हैव एनी इंडस्ट्री, दे डोंट हैव एनी प्रोडक्शन सेंटर। उनका काम क्या है कि वो एक पीस को डिजाइन करते, उनके डिजाइनिंग सेंटर बने हुए हैं सिर्फ। उनके पास डिजाइनर बैठे हैं, डिजाइन करते हैं, उसका एक सैंपल बनाते हैं। आजकल सैंपल बनने भी बंद हो गए हैं, वो सारा डिजिटली सारा काम करने लग गए हैं। वो बना के हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर को भेज देंगे कि हमें ये पीस चाहिए समर के लिए या विंटर के लिए या स्प्रिंग सीजन के लिए, तो आप इस सैंपल को हमें बना के इस फैब्रिक में दे दीजिए। वो चीज हम बनाएंगे उसकी नकल मार के, क्योंकि जो उन्होंने भेजा वही बनाएंगे हम। दैट मीन्स आम जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल की या पैरल इंडस्ट्री, उसमें डिजाइनर्स की वैल्यू ही नहीं है। जब उन्होंने हमें भेज दिया हम उसको करेंगे, या रखेंगे तो 1 या 2 रखेंगे। कहने का भाव ये है कि डिजाइनर्स की एम्प्लॉयमेंट का स्कोप ज्यादा नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में 1 या 2 से ज्यादा नहीं लगे। जब आप पास आउट ज्यादा होके आएंगे तो उसको जॉब कहां से मिलेगी? फिर वो मैंने फैशन डिजाइनर्स को एज प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स काम करते देखा है। हाँ, ये है कि उनको अगर फैशन डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा आता है तो सुपरवाइजरी अच्छी कर लेते हैं, तो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन फैशन डिजाइनिंग में जो 2 साल या 3 साल लगाए वो वेस्ट हो जाते हैं। सुपरवाइजर बनने के लिए तो हमें ज्यादा टाइम चाहिए नहीं। तो जो इनका क्वेश्चन था स्कोप का, तो आई डोंट फाइंड एनी बिग स्कोप ऑफ फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज
not only in India, anywhere in the world. Employability is less. I don't know whether I'm right or wrong. You can tell me. Yes, Kirti, next question, please. यस सर, तो चार्ट पिंटो पे तो फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में. कोई और बच्चा अगर कुछ क्वेश्चन किसी ने तो रेज किया हैंड. Either. Yes, sir. Sir, I want to ask a question which is relevant to skilling and your business. How you are controlling your attrition in your industry and in broadly in Ludhiana, because you are in the saddle of the association. Yes. Your question I could understand. How the industry in Ludhiana is controlling attrition? Attrition rate, sir. Attrition rate. People leaving the job. It is a very, very difficult question, and we are facing this always. Because I am from Tirupur, and Tirupur is best known for the attrition. That's it. See, as I just mentioned, that Ludhiana is a very typical place where, the local labor, either they are into farming, agriculture sector, or they have moved out to Canada, to England, or to UAE and other places. So we local people, we don't find to work with. Only the senior positions, maybe managers, production managers, or some managerial staff. The workers, operators, they are all migratory. They are from West Bengal, they are from UP, they are from Bihar, like that. So we face problem 3 times in a year. First, when they have a sowing season, so they'll without any information, they'll just move out. वो बोलेंगे जी हमारा कोई बात नहीं, 15 दिन का पैसा है, आके ले लेंगे हम. तो गाड़ी पकड़ेंगे, भाग जाएंगे. So they will not come back. 1 महीना वापस नहीं आएंगे, or 1 month or 1.5 months. So during that period, we face a problem, because when you are having a line system, 2-3 particular type of operators, if they are missing, your line gets disturbed unless you have a replacement. Replacement is not always ready. That's why I am emphasizing on just ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें इस चीज की. तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट अगर सेंटर हमारे पास है, तो हमें ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का एक टीम रेडी रखना चाहिए. अगर एट्रिशन होती है तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट इमीडिएट मिलनी चाहिए, which is a very tough job in Ludhiana. Mostly the industry is facing, पहले sowing season है, फिर हार्वेस्टिंग सीजन आता है. जब हार्वेस्टिंग होगी तो फिर जाएंगे लोग, फिर उस वक्त हमें बंदे नहीं मिलते हैं. तो ये काफी प्रॉब्लम आती है. तो इसका कोई इलाज कोई नहीं है एक्सेप्ट टू मोबिलाइज मोर पीपल एंड to train them and skill them up, so that whenever there is a problem, so you have to fill that up. Thank you, sir. Thank you. It is a problem of India. Or you take from other industries and pay them higher, which is not good, because it will disturb the competitiveness. Already you are working on margins. Thank you, sir. Thank you very much for replying. Yeah, thank you, sir. There's Jastinder Kaur also raising her hand. So, हाँ जी, मॉर्निंग. हाँ जी मैम, ग्राम तरंग से मैं हूँ, जसविंदर कौर, लुधियाना से. मैम, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं. करिए. ये मैडम आई हुए हमारे यहाँ पे 2-4 जी. हाँ जी, प्लीज वेलकम. ठीक हो सर? हाँ जी, को ठीक जी. बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है जी? सर, साढ़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने माइंडेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. पूछो जी, पूछो. हर जरूर वेलकम. बच्चों को पूछन. हाँ बच्चों, पंजाबी च करो गल. सर, मेरा क्वेश्चन हैगा कि सानू 3 महीने ਦੀ ट्रेनिंग मिल रही है, पर सर ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ मतलब ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ट्रेनिंग ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ट्रेनिंग ਮਿਲੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ
Can you explain what she said? यस सर. सर इनका कहना ये है कि 3 महीने की जैसे ये ट्रेनिंग करते हैं, अगर इनके अंदर ऐसी कोई कमी रह जाती है जो इंडस्ट्री से मैच नहीं होती, तो क्या इंडस्ट्री में जॉब लगने के दौरान इनको वो कमी पेशी इनकी पूरी की जा सकती है? क्या वो ट्रेनिंग मिल सकती है इनको? Yes, yes. ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ EMPLOYE ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਮੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਸਮਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵੇ। Wonderful, sir. Very Sir. nicely answered. Thank you. Kirti, do you agree with me or not? Kirti, unmute yourself. Yes, please. मैंने कहा सर डबल थम्स अप 200%. Next question, please. ये रेज किया हुआ हैंड. यस प्लीज. आईफोन से ये किसी यूजर ने अपना हैंड रेज किया हुआ है. यस, माइसेल्फ भूषण. या भूषण जी, आपका क्वेश्चन अजीत सर से. हाँ जी, गुड Okay. मॉर्निंग टू ऑल. Yeah, good morning. गुड मॉर्निंग. क्या हाल है अजीत जी? थोड़ा मैंने सुना आपने जो एड्रेस किया, तो माय क्वेश्चन इज द क्वालिटी बीइंग रेंडर्ड टू द स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो क्वालिटी के बारे में आपकी क्या राय है? मैं भी टाइम टू टाइम लड़के लड़कियां बुलाता रहता हूँ फॉर इंटरव्यूज. द क्वालिटी रेंडर्ड टू देम इज वेरी नॉट सेटिस्फैक्टरी. ठीक है. हाँ जी अभी भूषण जी, ऐसा है. मैं टीचर से जो डिसीनर से बच्चे बुलाए, 2-3 बार बुलाए, उनको बेसिक चीजें नहीं पता कि डाइन लैब का बेसिक क्या चाहिए. लैब असिस्टेंट बुलाए मैंने, दे डोंट नो. अभी मैंने लड़के बुलाए गुलजार कॉलेज से, चाहिए ई वाले बुलाए. बेसिक चीज की कमी है. जहाँ तो उनके सिलेबस पुराने हैं उनके पास, जहाँ सिलेबस को रिवाइज किया जाए, इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक सिलेबस इंडस्ट्री फ्रेंडली सिलेबस बनाया जाए ताकि दे मस्ट बी एक्वाइंटेड विद द इंडस्ट्री इजीली. भूषण जी, योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी वैलिड एंड एग्री विद यू कि ऐसा हो रहा है. अब कीर्ति आप ध्यान से सुनिएगा, एंड ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द स्किल डेवलपमेंट काउंसिल आल्सो दे मस्ट अंडरस्टैंड जो मैं अभी कहने जा रहा हूं कि एक तो जो ट्रेनिंग सेंटर जो इंडस्ट्री के अंदर है वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम देखते हैं कैसे करना है. जो ट्रेनिंग सेंटर आपके अलग अलग जगह पे पहले से खुले हुए हैं, वो डेफिनेटली वहां पे जो टेक्नोलॉजी मशीनरी या जो चीजें पड़ी हुई हैं वो आउटडेटेड हैं, वो ठीक नहीं है. दे आर ऑल आउटडेटेड एंड आई वुड नॉट इवन हेजिटेट टू से कि वहां पे जो ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स हैं. कीर्ति, आर यू लिसनिंग? Yes, sir, I'm listening, and Himanshu Veer from my side is answering this. No, question. please, nobody should mind what I'm going to say. No, sir, we understand. No, sir. Yes, sir. No one is minding. I don't want to interrupt you. Just wanted to share something that AMHSSC has recently launched a new concept on this only, on all the pain points that you have just shared. I have been writing to the government a number of times. I keep writing them. That's really great, sir. Whatever tools, whatever instruments, whatever machinery is available in those kind of centers is absolutely obsolete.
Sir, it was. Please, I will please just listen show to the- me. Please Yes. listen to me first and then you speak. Yes, Yes, Himanshu, please, let sir. him Yes, complete please. first. I keep going to those centers for lectures. Once I went to a center here in that's a knitting center, yes, knitting machine, you know, there's a institute there in Ludhiana. So they first I gave the lecture, then I said, show me the machine. When I saw those machines, I was literally crying, you know. I mean, these kind of machines you are giving training Okay. on, Yes, yes. when they will come to my factory, they will not even Okay, recognize okay. what this machine is. Those machines, you know, they are junk, absolutely zero, not updated technology, not even electrification and computer parts, nothing is there. So these days, those kind of machines are not working in the industry. So when a certificate holder, you know, operator comes to my factory, as Mr. Bhushan was just saying, I'm not talking about knitting only. Maybe it's a dyeing technician, laboratory technician, or whatever. If they are having a training on obsolete machines, how will they work properly on the new machine when they have not taken training and they don't have knowledge to operate them? Now, as you know, Mr. Himanshu was just saying, after writing to the government so many times, they have now budgeted money for buying the new machine, and in many centers I've seen the machines have come in. Yes, sir. Second important thing which I was trying to tell, that For Hindi, the they are requesting for जो Hindi. इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे जो ट्रेनिंग देते हैं, मैंने वहां पे उनका एग्जाम लिया, टेस्ट लिया. अकॉर्डिंग टू मे दे वर ऑल फेल 100%. वो पास भी नहीं हुए कि मतलब 33% मार्क्स भी नहीं थे उनके. अगर उस तरह के इंस्ट्रक्टर जो है इतने पुराने चल रहे हैं और उनकी कोई नई टेक्नोलॉजी की उनकी कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं है या उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, मेरे को बात बताइए. तो इसलिए ये व्हाट इज नीडेड इज जो नई टेक्नोलॉजी आए, पहले तो इंस्ट्रक्टर्स जो है, टीचर्स जो है, उनकी ट्रेनिंग हो, पहले उनको समझ आए कि ये क्या चीज है, तो वो फिर बच्चों को समझा पाएंगे ना. तो जहां जहां जिन सेंटर्स में जिस टाइप की मशीनरी ठीक नहीं है, वी शुड एम्फेसाइज. हमारे एसोसिएशन को बताइए, गवर्नमेंट को डायरेक्टली लिखिए, वो मशीनरीज रिप्लेस हो, पुरानी मशीनरी बिल्कुल उठा के जंक कर देनी चाहिए और नजर भी नहीं आनी चाहिए वहां पे. तो पहले टीचर्स की ट्रेनिंग हो, फिर स्टूडेंट्स की हो, फिर उसके बाद जो है हम उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे, उनको एज अप्रेंटिस आना पड़ेगा. 2-3 महीने की अप्रेंटिसशिप के बाद देन दे बिकम परफेक्ट. यस प्लीज मिस्टर श्रीधर. Sir, Sir, I have some submission here. Actually, your points are very valid. We have already, I mean, this is in the system. Because Yes, we, sir. every second year, we review the qualification packs. And now the control is going to be given to NCVT too. So now, here what happens is, and regarding the training of the trainers, the TOT certificate expires every 2 years. So when the next time when they come for the training, they are taught with the new concepts in their particular job role. So now the problem is some of the centers are using a people who has trained in sewing machine operator for hand embroidery or machine embroidery. So that thing happens. Probably that things like that you would have noticed. So that problem is there. Otherwise, you know, this has been taken care of, but the pace in which it is running is probably very slow. That is why the question has arisen. And Sridhar sir, I just want to Also, show your point- Ajit the Center of Point which Excellence you are Himanshu, presentation. one minute, Himanshu. I'm Yes, speaking. please. Yes, please. So the point which you have told everything are valid, and we are going to escalate this matter to our management too. Thank you, sir. Mr. Sridhar, whatever you said, officially, you know, there must be a system as you whatever explained, because we are not aware of your official systems. But what I am talking is what we personally face, what we personally see. So if the training a trainer is a course, It's a mandatory, sir. It is not a course. this has to be meticulously tested that is it being done properly or not. Yes, sir. And
are they getting the training on the proper instruments and proper machinery which Yes. is to be taught to the children? Yes. So if you can look into it deeply, and wherever there are deficiencies in the system, those need to be removed and improved. I agree, sir. I agree. Yeah. But the TOT is not a course, it is a mandatory. Only a person trained, person who has obtained 80% in TOT, which is a 10 days of full program, they have to attend and take a certificate with 80% marks. Then only they are eligible to get the numbers from the government for training, skill training. I And will all these- further add to it. Yeah. I will add to it that test or the approval by the industry should be must of the trainer, of the students as well. Okay. Yeah. Because That is right. ultimately it matters to the industry. If one of my colleague, Mr. Bhushan, is saying that I got candidates from this institute, and there's nothing. So that means industry is not improving. Industry should feel happy that I'm getting a candidate from this institute and they're doing very well. So they should appreciate, not that they should complain like this. That's right. That's correct. That's right. Yes, The thing, Himanshu was saying something. the qualification pack which is being reviewed, it is being vetted by the industry concerned. Whom are having that job role, they are vetting. That is being submitted to the committee for reviewing. Himanshu, over to you. Yes, Himanshu. Very well explained, Ajit sir. Yes. Thank you for your insight. Kirti ma'am, can you please just share the presentation of Center of Excellence? I want to show it to Ajit sir. ओके तो पहले मैं थोड़ा सा With इंट्रोडक्शन him दे देती हूँ हिमांशु के प्रेजेंटेशन के पहले. सर श्रीधर सर ने काफी अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोगों के लिए मैंडेट होता है. तो दिस इज ट्रू कि हम लोग कोई भी अगर आपको स्कीम रन करनी है तो पहले ये मैंडेटरी है कि आपका जो ट्रेनर है, जिस भी इंस्टीट्यूट का ट्रेनर है, वो टीओटी सर्टिफाइड होना चाहिए. अगर वो टीओटी सर्टिफाइड नहीं है तो उस ट्रेनिंग सेंटर में वो स्कीम हम रन कर ही नहीं सकते या वो इंस्टीट्यूट नहीं एलिजिबल होगा उसके लिए. सो दैट्स नंबर 1. और जो रही बात कोर्स अपडेट करने की, दिस इज एक्चुअली अभी हम लोग AMHSSC के जो 45 जॉब रोल्स है, हम लोग इस प्रोसेस में हैं, हम रन कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर अभी बहुत जल्दी मैं आपसे एंडोर्समेंट के लिए कांटेक्ट भी करने वाली हूँ उसके लिए. तो वी आर इन प्रोसेस. बट हाँ, राइटली सेड बाय श्रीधर सर कि ये जो प्रोसेस है ये काफी टाइम टेकिंग है. इसको थोड़ा और हम फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं. बट वो इतने चैनल्स है ना सर, मिनिस्ट्री में अप्रूवल लेना, NCVT मीटिंग्स एंड ऑल, तो वो इट टेक्स टाइम. तो आई एग्री विद द क्वेश्चन कि हाँ, स्किल ट्रेनिंग में अगर कहीं कोई इशू है, जो आपने जो आईफोन से, आई डोंट नो द नेम ऑफ द यूजर, में उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया था कि शॉर्ट कमिंग्स लगती हैं जो ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं बच्चे. तो आपने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए थे सर. मैं ये नहीं कहती कि 100 सेंटर्स है तो 100 में ये इशू होगा, बट डेफिनेटली कुछ में है और कुछ काफी परफेक्टली वर्क करते हैं. अब इसका सोल्यूशन जो है वो हमने एज अ AMHSSC निकाला है. हमारा अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि दिल्ली और तिरुपुर बेस्ड है. तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्री को, यूथ को, उसके बारे में मेरे फ्रेंड हिमांशु इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे सर. Yes. So प्लीज ओवर टू यू हिमांशु. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि AMHSSC ने लॉन्च किया है. मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. श्योर. AMHSSC प्लान कर रहे हैं कि वो 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए हैं, एक दिल्ली में, एक तिरुपुर में, साउथ में. नेक्स्ट मैम. मेन कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव जो एम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, कि वो ये है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पे हाई स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएं रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए और लर्निंग के लिए. एक ऐसी प्लेस जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, नए कॉन्सेप्ट्स का, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को और उनके टैलेंट को नर्चर कर. जो नॉलेज है उसको अच्छे उसमें कैपेसिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते. सो ये कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प कर सकता है इंडस्ट्री पीपल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेस के लिए? सी वी हैव डिजाइन्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सम कोर्सेज जो कि इफ वी सी जो हमारा वर्किंग पैटर्न होता है इंडस्ट्री में, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दीज आर सर्टिफाइड कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज. इनके थ्रू आप अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं.
the employee can increase their efficiency. जो reduce करता है ये risk factors, brings innovation and improvement. जैसे कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी नई ट्रेनिंग की जरूरत होती है, नई गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च होती हैं तो उसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है. कैसे कैसे आप अपनी स्किल्स को अपस्किल करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, पॉलिश करते हैं. बाय दीज, बिकॉज ऑल द कोर्सेज दैट वी हैव, दे आर need of the industry, and these are industry ready courses, and the trainers that we have, they are not academic trainers, ये सब working professionals हैं. मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. मैम प्लीज नीचे जाइए. ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली की पिक्चर्स हैं और जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तिरुपुर में भी प्लेस किया है. नेक्स्ट वन. These are our fully equipped digital classrooms. Top of the line sewing machine. Next one. This is our 12 head computerized embroidery machine. This is CAD and pattern making setup. On the, ma'am, can you go back please? On the right, you can see the table. There is a camera placed at the top so that कि वो कैमरे से पैटर्न का पिक्चर क्लिक हो जाए एंड वो ऑटोमेटिकली उधर प्लॉटर पे जाके उसको कट कर सकता है. नेक्स्ट वन प्लीज. So this is our fabric and cutter machine. Also, this is the warehouse that where we have placed all the machines. Next one, ma'am. Okay, this is state of the art spreader and cutting machine. This is Bulma. इस एक मशीन के ऊपर आप अराउंड 1000 गारमेंट्स इन वन गो कट कर सकते हैं एंड 1 or 2 पीपल इसको ऑपरेट कर सकते हैं. इस पे भी ट्रेनिंग्स होती हैं. दिस इज बैंड नाइफ कटिंग मशीन. नेक्स्ट वन मैम. फ्यूजिंग मशीन इज देयर. दिस इज कैफेटेरिया एंड लाइब्रेरी. सो दिस इज द सेटअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि AMHSSC ने प्लेस किया है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, students, working professionals. Next one, ma'am. These are the offerings जो COE offer करता है students को और candidates को. Training of trainers, trainings of assessors. We create and develop specialized courses जिससे कि fashion students को एक next level confidence मिले. Because academics की training तो वो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को अभी क्या चाहिए, जैसे मिस्टर लकड़ा वो भी जानते हैं बिकॉज ही इज फ्रॉम द इंडस्ट्री. जो भी उनके पास स्टूडेंट्स आते होंगे, जो भी उनके पास कैंडिडेट्स आके उनको ज्वाइन करते होंगे, तो वो पहले एकेडमिक ट्रेनिंग लेके आते होंगे, बट फिर सर उनको गाइड करते होंगे कि अब आप आ चुके हैं प्रोफेशनल उसमें डोमेन में, नाउ थिंग्स विल रन लाइक दिस. सो हमने सब इंडस्ट्री रेडी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए ये सब प्रोग्राम्स बनाए. जैसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए. जैसे काफी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एकेडमिक ट्रेनिंग करते हैं, बट वो इन सब मशीन्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते. सो वी हैव दिस ऑप्शन फॉर देम कि हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है. वी हैव ऑल द मशीन्स. आप एकेडमिक ट्रेनिंग अपने यहाँ पे करा रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे इन सेंटर्स में आके करवा सकते हैं और स्टूडेंट्स को एकदम ऑन द जॉब ट्रेनिंग काइंड ऑफ जैसा एटमॉस्फेयर फील होगा. We have SDP, student development programs. We have entrepreneur and startup incubators. Like कोई भी स्टूडेंट है वो अभी फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद में वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, ब्रांड लॉन्च करना चाहता है. He has ideas, he has capital कि वो क्लॉथ खरीद सके, उसके पास डिजाइन के आइडियाज हैं, बट मे बी उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी पे पुट इन करने का अमाउंट नहीं है. सो वी कैन हेल्प दो स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स so that they can come, use the infrastructure, create their product and launch their product. Ma'am, next slide please. So these are few of the SDPs. Ma'am, please next. जैसे सर ने बताया था कि everyone is going for fashion designing courses, only fashion designing, but no one really knows कि fashion designing के अंदर और fashion designing के अलावा
कितना सारा स्कोप है और कितनी डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए. They can become fashion entrepreneur, they can become e-commerce buyer, they can become fashion forecasting by doing fashion forecasting modules. Fashion stylist is there, costume design is there. Okay, there is this course, social compliance. If any brand is coming, international brand coming to a country, सबसे पहले वो किसी भी बायर है कोई, वो किसी भी फैक्ट्री में आता है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आता है, सबसे पहले वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन, सोशल कंप्लायंस, कोड एंड कंडक्ट ये चेक करता है. तो फैशन एंड अपैरल में ये भी एक प्रोफेशन है. तो पैटर्न मेकिंग, डिजाइन थिंकिंग, इमेज कंसल्टेंट, स्मॉल मीडियम बिजनेस मैनेजमेंट. सो दीज आर सो मेनी, लाइक देयर आर डिफरेंट कोर्सेज जो कि स्टूडेंट कर सकते हैं और उनको पता नहीं है कि इसमें भी फैशन में वो अपना हिमांशु, इन चीजों के थ्रू भी कोर्स करके करियर बना. हिमांशु, आपका नेटवर्क से चला गया था, बीच में हैंग हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one. So these are some of MDPs for working professionals. Next one, ma'am. Like supervisory skills in manufacturing, improving quality in presentation, time study, managing quality in manufacturing, cutting room management, customer relationship building. So these are some courses. Host is not allowing. Now it is Yes. not Yes. okay, sir. Okay. This Center of Excellence is wonderful. This is well equipped and it has all kind of modern machinery which should be available and which is running in the industry as well. But question is that how many Center of Excellence you have? Whatever training centers working in all cities, do they all have these kind of equipment? This is a point. If it is there and more are coming, this is wonderful and this will impart a good training. Yes. And training of trainers also is a must. Yes, sir. Noted, sir. And it is, we are already doing such POPs. And Acha, Sridhar has want to say something. Okay. So, sir, you can just unmute yourself, please, Sridhar, sir. You complete your point, then give it to me. Kirti, let me not disturb. Okay. So, you were asking about how many the COEs we have. So currently, sir, we have 2 COEs. And recently, shortly we are going to open 2 more COEs. So one is for the north region, the Delhi COE is operational, and for the south region, there is a Tirupur COE is operational. Very So yes, sir. That's appreciable. Thank you, sir. Now, Sridhar, sir, please. Oh, yeah, let me continue with Kirti's statement. The other 2 Center of Excellences are shortly coming up in Kolkata and Mumbai. So we want to have the all over India thing. Then if somebody is willing, like your association is willing to put up a Center of Excellence in Ludhiana, you can get in touch with Kirti and we can take it forward also. Okay, on this, my question to you. Yeah. Here, there is one association, I think Kirti has already visited. There are about 250 units there. So if they provide the place, can the government open the Center of Excellence there? Yes, So sir. Yes, sir. No, we can just try to get it done. The Bahadurgarh Road Association, I told you, you visited once. Yes, sir. So we can take up again. So Yes, sir. You have to let us know the space requirement Yes, and sir. the overall equipment, what can be sanctioned for that, so that the training is imparted to the needy students and they can get employed immediately on Sure, the sir. market area. So you It's a touched big this gift. point. So I just wanted to share that this is our, CEO's dream that he. Okay. So, thank you, Ajit sir, for your very positive approach, Thank We you. thank you very much. And Center of Excellence cannot be brought everywhere, Then the identity is lost of the Center of Excellence. So it has to be in important places, in hubs, like I think in Tirupur. Ludhiana, you don't have Yeah, any. in hubs, like Tirupur, Ludhiana, Yes. Panipat, like these places can have
thing, center of In excellence. Ludhiana, I think this can be done immediately. You tell somebody to be in touch with me, Yeah. so I'll get it done immediately. Yes. So Kirti will take it forward. She's very happy to take it forward. Thank you. And regarding another request is with you, you are very popular in Ludhiana. So I need your help to campaign about our Center of Excellence and its programs, so such that all the exporters and manufacturers can use the services of Center of Excellence, maybe in management development programs or for the shop floor level people training programs, customized training programs, online training programs, or on-site training programs, everything, they have a very big menu, Center of Excellence. You can get in touch with Kirti madam, so such that, let all the people get benefited. Yeah, thank you very much, sir. Thank you very much for sparing your valuable time. And we feel that the purpose of arranging a webinar today, it is fulfilled, My pleasure. Thank you very and we need your support on all our future events too. Kirti, you can thank Ajit sir. I'm He's, sorry, he I wants to lost the be- connection. Kirti, I think you lost the connection. So for opening up a center of excellence, you can be in touch with me and I'll get it open in that area. But now I want to take leave. Kirti, are you listening? Kirti, unmute yourself and thank Mr. Ajit. We want to leave the thing. Thank you very much. Thank you so much, Ajit sir, for your Thank time. you. Hello. Yeah, Kirti, can you hear? I think. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Ajit, you sir. very Thank you so much, Ajit sir. Thank you very much. Yeah, it's fine, sir. Himanshu, So- what we did Yes, is, sir. we have requested Mr. Ajit Vicky ma'am, to you are campaign with me. about Center of Excellence amongst his fellow exporters and manufacturers and use our services of all these management development programs, online programs, on-site programs, and all customized programs. I have requested him. So I think we can get in touch with him for developing Ludhiana's skilling, Yes, Yeah. sir. And so I Kirti, will over just to you. write my email ID and contact details in the chat box. Like if any student or any college wants to connect with me for such courses and for these opportunities, they can contact me. Okay. Please carry on, sir. Okay. हिंदी में बोलो ये. हिमांशु, ठीक है. मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में. अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो मैंने डिटेल्स पहले शेयर की थी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने में, मशीन्स यूज करने में, या फिर एसडीपीज जो भी स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो भी मैंने मेंशन किए थे, उसमें कोई भी स्टूडेंट या कॉलेज इंटरेस्टेड है तो वो मुझे कनेक्ट कर सकता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए. थैंक यू. Over to you, thank you, Kirti. Himanshu. I have grabbed your mic. Over to you, Kirti. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Ajit sir left, sir? Yeah, he has left. He has some important. Okay. Because I lost my connection, so I don't know what had happened. Okay, it's okay. You can Okay. proceed with your further program. Yes. So अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी because already we are running with time. So students, अगर हम लोग प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेके जरा सा आपको अप्रेंटिसशिप के ऊपर बताऊंगी, क्योंकि अजीत सर ने जैसे कि एज अ इंडस्ट्री के साइड से एक्सप्लेन किया कि अगर आपके अंदर कोई आपको लगता है ट्रेनिंग के बाद भी कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम कोई गलती ना कर दें, या जो भी आपके मन में जो डाउट्स थे जो आपने क्वेश्चंस किए थे, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने आपको एक सोल्यूशन दिया था कि अगर आप अप्रेंटिसशिप मॉडल के थ्रू रूट करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आप फेस करेंगे. तो मैं आपको अप्रेंटिसशिप के ऊपर ही एड्रेस करूंगी और बहुत कम टाइम में मैं ट्राई करूंगी अपना पॉइंट को कवर करने का. तो आई जस्ट शेयर माय स्लाइड हियर और मैं ट्राई करूंगी हिंदी में बोलने का. पंजाबी सॉरी मुझे एक्सक्यूज करना पंजाबी के लिए, बट मैं हिंदी में पूरा ट्राई करूंगी आपको शो. तो नेशनल अप्रेंटिसशिप से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपनी काउंसिल के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज एएमएचएसएससी. एएमएचएसएससी का हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बट एएमएचएसएससी क्या है? एएमएचएसएससी बेसिकली एक असेसिंग बॉडी है जिसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एईपीसी, एनएसडीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है. और ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स है 4500, असेसमेंट बॉडी 46, मास्टर ट्रेनर 250, सर्टिफाइड असेसर 3500 एंड सर्टिफाइड ट्रेनर्स
10,500. Hindi. Best practice. हाँ जी सर. Hindi. So aim. Yes sir. So please let me explain first. तो मैं उसको ट्रांसलेट करती जाऊंगी अपनी बात के बाद. ओके. तो हम लोग जो AMHSSC में आप देखते हैं, आपका एक स्किल ट्रेनिंग का कोर्स होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में. अगर आप ग्राम तरंग हैं या सपोज शहीद भगत सिंह से हैं या जहां भी आप किसी इंस्टीट्यूट से हैं, तो वहां पे आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बेसिकली AMHSSC डेवलप करता है, जिसको हम कहते हैं नॉजेज एंड क्यूकीज, जिसके बेस पे आपकी करिकुलम डिफाइन होता है. तो वो है AMHSSC का रोल. एंड सेकेंडली, आपका जब असेसमेंट होता है, यानी कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो AMHSSC कंडक्ट कराता है. और जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है आपके एंड ऑफ दी जो टर्म, जो आपका कंप्लीट हो जाता है 3 मंथ्स का ट्रेनिंग, उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो AMHSSC प्रोवाइड कराता है. तो शायद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि AMHSSC का रोल क्या है यहाँ पर. AMHSSC का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है अपैरल्स का. जो प्लेसमेंट रहा है PMKVY का इन जनवरी 2020, वो नंबर 1 था अपैरल का स्कोर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. और जैसा कि मैंने एम्प्लॉयर साइड से भी आपने सुना कि किस तरीके से आने वाले टाइम में अपैरल इंडस्ट्री में हमें स्किल्ड मैन पावर की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है. तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस स्किलिंग कोर्सेज में एनरोल होते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप, नॉट ओनली इन द वन जॉब, देयर आर मेनी जॉब रोल्स, लाइक 40-45 जॉब रोल्स, जिसमें आपका फ्यूचर स्कोप है. तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है हमारी काउंसिल का. नाउ आई एम कमिंग टू माय पॉइंट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है? तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. एक होती है बेसिक ट्रेनिंग, जिसकी सर ने डिस्कशन की थी कि वो आप पहले एक बेसिक ट्रेनिंग लेके आइए, उसके बाद फिर हम आपको अप्रेंटिस के उस पे रखेंगे रोल पे, एंड उसके बाद आपको जॉब ऑफर होगी. तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं. तो अप्रेंटिसशिप में पहले तो आप एक बेसिक ट्रेनिंग करते हैं. बेसिक ट्रेनिंग आपकी वैसे ही होती है जैसे कि आप अभी स्किल ट्रेनिंग सेंटर में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वैसे ही अप्रेंटिसशिप में भी आप 3 मंथ्स की जो 500 आवर्स होते हैं आपको मैंडेटरी, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं. तो वो आप एक बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं. उसका पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ ये है कि आप शॉप फ्लोर पे जाने के पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है कि कहीं आपको कोई इंजुरी ना हो या कहीं कोई मशीन का कोई डैमेज ना हो. तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रोग्राम डिफाइन किया गया है कि हम पहले किसी भी फ्रेशर को, बट एक बात ध्यान रखना, ये फ्रेशर के लिए है. जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट है किसी वोकेशनल ट्रेनिंग से सर्टिफाइड हैं या जिन्होंने ऑलरेडी इसका स्किल ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, उनको इस 3 महीने की प्रोसीजर से गुजरने की जरूरत नहीं है. वो डायरेक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जा सकते हैं और फिर अपना आगे अप्रेंटिस के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर दिस अप्रेंटिसशिप. तो आपको नंबर 1 पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन बेसिक ट्रेनिंग करेगा. बेसिक ट्रेनिंग ओनली फ्रेशर्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द स्किल्ड सर्टिफाइड होल्डर. नंबर 1. सेकंड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? किसी फैक्ट्री में होती है या कोई जो भी इंडस्ट्री है उसी में ही होती है. बेसिक ट्रेनिंग आपकी किसी इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है या फैक्ट्री का अपना, जैसे कि सर बोला था कि अपने फैक्ट्री के भी हम लोगों ने स्किल सेंटर रन कर रहे हैं, तो आप उसमें भी बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हैं. तो ये है कॉन्सेप्ट एक बेसिक ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का. अप्रेंटिसशिप का क्या रोल है? क्यों अप्रेंटिसशिप मॉडल पे हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस ये है कि अप्रेंटिसशिप को हम ज्यादा प्रमोट करें? उसका रीजन ये है कि अभी सर ने जो मेंशन किया कि हमें बहुत ज्यादा एट्रिशन रेट है या हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्किल्ड लेबर ढूंढने के लिए और वर्क फोर्स ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए. तो वो डिमांड बहुत हाई है. दूसरी ओर हमारा जो नेशन है, जो हमारी कंट्री है, वो सबसे ज्यादा यूथ यानी कि सबसे ज्यादा नौजवान हमारी ही कंट्री में है. तो उन यंग बच्चों के लिए जो वो पढ़ चुके हैं, वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नहीं पढ़े इसलिए जॉब नहीं लग रही. दिस इज नॉट द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. रीजन इज समथिंग एल्स. रीजन ये है कि यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉपर ब्रिजिंग ही नहीं है. इंडस्ट्री को ही नहीं पता कि बच्चे यहाँ पे स्किल्ड हैं या एजुकेटेड हैं. ना एजुकेटेड और स्किल्ड बच्चों को पता है कि कहाँ पे किस इंडस्ट्री में हम अप्लाई कर सकते हैं. तो वो ब्रिज
उस ब्रिज को बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप काम करता है। यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड होती है एक और, तो दूसरी ओर जो बच्चे स्किल्ड होते हैं, जो बच्चे एजुकेटेड है या नहीं है, या किसी वजह से जो भी उन्होंने अपने वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। और वो अप्रेंटिसशिप मॉडल में आने के बाद अपनी अप्रेंटिसशिप जो उनकी होती है 1 ईयर और 1.5 ईयर का जो भी उनका प्रोग्राम है, या 2 ईयर्स तक भी जाता है, ये 3 ईयर्स तक भी जाता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ अब इसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 14 ईयर्स एज मिनिमम आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री का जो नेचर है वो काफी हजार्डियस वहां पे काम होता है, यानी कि काफी ऐसा है जो छोटे बच्चों के लिए जो अलाउड नहीं होना, आई मीन 14 ईयर्स के बच्चों के लिए जो अलाउड नहीं है, तो वहां पे 18 ईयर्स का मैंडेट है, वहां 18 ईयर्स से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 5th क्लास पास बच्चे इज दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अप्रेंटिसशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। आप जब तक पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी कुछ होगा वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ही होगा। अप्रेंटिसशिप पोर्टल की डिटेल्स भी मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन के बाद में प्रोवाइड करा दूंगी, जिसको आप देख के आप कर सकते हैं, लॉग इन करेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के पास आधार नंबर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा JNK का है तो उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। नाउ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि आप, हाँ, किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी है। अप्रेंटिसशिप वही मैंडेटरी है जहां पे 30 और मोर एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ होती है। अप्रेंटिसशिप भी दो ट्रेड्स में डिफाइंड है, एक डेजिग्नेटेड, एक ऑप्शनल। तो आप जो सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू जिस रूट को करते हैं वो ऑप्शनल ट्रेड कहलाता है। तो हम जब भी बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की एज SSC, हम हमेशा ऑप्शनल ट्रेड की ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट इज हमारी अप्रेंटिसशिप स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी 2.5 to 15% आप अप्रेंटिसशिप की स्ट्रेंथ ले सकते हैं। और 6 to 36 months is the duration for the including your basic training and apprenticeship training on the job training. 500 ट्रेड्स यानी कि 500 कोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ सर्विस सेक्टर, हाँ, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन को इसमें एक कन्वीनियंस दिया है कि वो अपने जैसे कि बोला गया था कि कोर्सेज हमारे अपडेटेड नहीं है, या इंडस्ट्री अगर चेंज करती है तो वो भी इमीडिएटली अगर चेंज हो, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अप्रेंटिसशिप मॉडल में है। इंडस्ट्री इज फ्री टू डिजाइन देयर ओन कोर्स। और जो मैंने आपको पोर्टल बोला था कि आपको अप्रेंटिसशिप में रजिस्टर करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो वो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, apprenticeshipindia.org। इस पे अगर आप लॉग इन करेंगे तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब फटाफट से क्विकली हम देखते हैं कि हमारे को अप्रेंटिसशिप में कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अप्रेंटिसशिप में अगर आप क्लास 5th से 9th तक पास हैं तो आपको 5000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं तो आपको 6000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप 12th पास हैं तो आपको 7000 पर मंथ मिलेगा। अगर आपने कोई नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपको 7000 पर मंथ मिलेगा। टेक्नीशियन, अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर या कोई सैंडविच कोर्स अगर आपने किया हुआ है कोई डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन से, तो आपको 7000 पर मंथ मिलेगा। टेक्नीशियन, अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर, अगर आपके प्रॉपर आप डिप्लोमा होल्डर है आपका, तो आपको 8000 पर मंथ मिलेगा। किसी डिग्री आपके पास में है इंस्टीट्यूट से, तो आपको 9000 पर मंथ मिलेगा। सो दीज आर दी ये सेट पैरामीटर्स है अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड के। अब आपको मन में होगा कि ये अमाउंट तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं इसमें कोई बाद में ऐसा तो नहीं हमें बार बार पीछे पड़ना पड़ेगा कि ये हमें अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो आपको पोर्टल मेंशन किया apprenticeshipindia.org, अगर आप उस पर जाएंगे तो उसमें आपकी पेमेंट, आप मतलब उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मांगी जाएंगी। आप अपना, आपका जो भी स्टाइपेंड है वो एम्प्लॉयर आपको आपके बैंक अकाउंट में देगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड से दे चाहे वो ऑफलाइन मोड से दे। अब ऑनलाइन ऑफलाइन क्या, ऑनलाइन तो ये है कि उसने सीधे डायरेक्टली पोर्टल से ही उसने आपका फंड ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, अगर वो उससे नहीं देना चाहता, अगर आपको चेक काट के देते हैं जैसे भी देते हैं, बट इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर बैंक अकाउंट। तो इसकी श्योरिटी एम्प्लॉयर को भी, गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी।
जब तक एम्प्लॉयर ये नहीं शो करेगा कि वो पैसा बच्चे के अकाउंट में गया है कि नहीं, तब तक वो उसका रिइंबर्समेंट क्लेम ले नहीं सकता। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको हर हालत में आपका स्टाइपेंड जरूर मिलेगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपने पोर्टल पे जैसे आपने स्टेप वाइज अपने आप को लॉग इन किया, रजिस्टर किया, फिर आपने कोर्स में एनरोल किया, उसके बाद आपका जो भी है वो सिस्टमैटिकली चलेगा, तो इट्स अ गवर्नमेंट पोर्टल। तो इसमें बहुत ज्यादा है डिटेल में, मैं अगर जाऊंगी बहुत टाइम भी लगेगा, बट जो मेनली मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब आपने जैसे यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स हु कैन ट्रेड, तो आप कोई भी मतलब एलिजिबिलिटी अगर आपने किसी भी ITI से किया हुआ है तो आप एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको कोई जरूरत नहीं है बेसिक ट्रेनिंग में जाने के लिए, या डिप्लोमा डिग्री किया है या शॉर्ट टर्म स्किल्स क्या, आपको उसके लिए कहीं पे भी बेसिक ट्रेनिंग में अपने आप को एनरोल कराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने मेंशन किया था। अब बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट है, इंडस्ट्री को बेनिफिट ही बेनिफिट है वैसे, और सिमिलरली स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट ही बेनिफिट है इसका। इंडस्ट्री को जो है क्विकली हम देखते हैं बेनिफिट्स जो है, उनको EPF ESI नहीं देना, जो एक नॉर्मली उनको एम्प्लॉय के केस में देना पड़ता है, एक लीगल कंप्लायंस हो जाता है कि उनको ESI EPF देना है। CTC भी उनकी जो कॉस्ट होती है एम्प्लॉय की वो बढ़ जाती है इस करके, तो वो रिड्यूस हो जाती है अप्रेंटिसशिप मॉडल में, क्योंकि यहाँ पे उनको सिंपली स्टाइपेंड देना होता है और कवरेज के लिए वो एक मेडिकल ग्रुप क्लेम ले सकते हैं, तो विच इज वेरी कॉस्ट सेव। इन एडिशन वो अपने CSR फंड्स को भी रूट कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो अवेलेबल है, अब जैसा कि बच्चों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट था स्टाइपेंड, सिमिलरली यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए है 1500 पर मंथ पर अप्रेंटिस उनको मिलेगा। नाउ बेनिफिट्स टू द BTP। अब अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर यानी कि कोई अगर ट्रेनिंग पार्टनर BTP बनना चाहता है, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनना चाहता है, तो उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से वो मिलेगा 7500 फॉर 3 मंथ्स। उनको जो ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेंगे 3 मंथ्स, उसका 7500 BTP को मिलेगा। अगर वो PMKVY के बच्चे अपने अप्रेंटिसशिप के लिए भेजते हैं तो वो एज अ प्लेसमेंट कंसीडर किया जाएगा, बट इसमें एक कंडीशन है कि उनका पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ में पोर्टल पे अग्रीमेंट इशू होना चाहिए, थर्ड पार्टी एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल। तो ये एक मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है जिससे आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है ये अप्रेंटिसशिप का पोर्टल, जिसमें कैसे एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। ऊपर अगर आप देखते हैं सर्कल के ऊपर जो मैंने ब्लैक हाईलाइट किया है, इसके ऊपर लिखा है कैंडिडेट यूजर मैनुअल। आप इसमें कैंडिडेट यूजर मैनुअल में जाके अपनी डिटेल्स देख सकते हैं एज अ स्टूडेंट, और एस्टैब्लिशमेंट यूजर मैनुअल में आप जाकर के एस्टैब्लिशमेंट का देख सकते हैं कि वो कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, क्या इसकी फंक्शन है। और इसमें जो आपको असेसमेंट होगी और जो सर्टिफिकेशन होता है NAPS में, वो किस तरह से होता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताती हूँ। पहले इसमें एक आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो मैंने बताया था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी एस्टैब्लिशमेंट में ही होती है, तो वो टोटली प्रैक्टिकल होती है। और जो आप अपना बेसिक ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, जो फर्स्ट 3 मंथ्स आप कोर्स करते हैं, वो आपका ऑनलाइन होता है, दैट इज थ्योरी। और जब आपका सर्टिफिकेट मिलता है तो वो दोनों का मिलता है, आपको एस्टैब्लिशमेंट से प्रैक्टिकल का असेसमेंट एंड SSC यानी कि सेक्टर स्टॉल से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आपको अपना सर्टिफिकेट मिलता है। आपने जो 3 मंथ्स का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया होता है, तो आपको ऐसे असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन जॉइंटली मिलती है, एस्टैब्लिशमेंट प्लस सेक्टर सी काउंसिल। 45 क्वालिफिकेशन पैक्स हैं जो प्री अप्रूव्ड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। आप इनमें से कोई सा भी क्वालिफिकेशन पैक चूज कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, आप इसमें देख सकते हैं। बाकी अप्रेंटिसशिप में उधर आप पिक कर सकते हैं इनमें से कोई सा। और जस्ट फॉर दी इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री हैं उनके लिए है ये मैसेज कि जो अप्रेंटिसशिप में एक पहले जो एक इंस्पेक्टर से आते थे जो चेकिंग करने की भाई अप्रेंटिसशिप ठीक से हो रही है या नहीं, तो वो काफी एक पहले ना एक बड़ी लीगल वो होती थी प्रॉब्लम, कि इस कारण से कई लोग कई इंडस्ट्रीज मोटिवेट नहीं होती थी कि इतने सारे क्यों झंझट में हम पड़े, क्यों बड़ा में इंस्पेक्टर आ रहा है, फिर हमारे प्रीमाइसेस आके मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वो वाली चीज को गवर्नमेंट ने ध्यान रखते हुए कम किया है। कम क्या किया, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि खत्म ही कर दिया है। अब सेक्टर स्किल काउंसिल के जो CEO और जो हैं वो उनको ये अथॉरिटी दी हुई है, दैट इज कॉल्ड JAA, जॉइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। और उनके पास ये सारी अथॉरिटीज हैं कि आपको अगर कोई भी बच्चे को अगर लाइक कहीं पे भी अगर कोई लीगल कहीं हेल्प चाहिए या कहीं एडवाइजरी चाहिए, तो
आप सेक्टर काउंसिल के सीईओ को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वो लीडिंग कंपनीज है जहाँ पे हमारी अप्रेंटिस प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग में है। तो मैं यहाँ पे अपनी पीपीटी बंद करती हूँ और आप लोग मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसी को भी कोई क्वेश्चन है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, या आप अपने आप को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ गौरव ने अपनी मेंशन की हुई हैं, हिमांशु ने भी आई गेस की, यस हिमांशु भी ने की हुई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर सीओई, हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक हिमांशु ने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया होगा कि अगर नॉर्थ में आपको किसी भी स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारा दिल्ली सीओई है। आप प्लीज फ्री, हम लोगों को फ्रीली कभी भी आप ईमेल या कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको जब भी एनरोल कराना है किसी भी प्रोग्राम के लिए। एनी क्वेश्चंस? कीर्ति मैडम, हाँ जी। I think the audience can drop their questions to you directly. Yes, yes. We may have to close the session at any time. I got the thumbs up. Thank you so much, Jaspreet Kaur, Amritpal, and again Jaspreet Kaur. Thank you so much. तो participants, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप आराम से हमें ईमेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेंशन है, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी एक मिनट @SSCE. And give your WhatsApp number. That is easy for students. So I have mentioned my email ID, sir. It's better कि मेरी ईमेल आईडी पे अगर आपको कुछ भी, और मेरा आपको अगर कभी कोई कॉल भी करना है, you can also ask, write a mail. I'm available. I'm free to. I'm actually I would love to solve your queries in case अगर आपको है। And I would see, हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया, आप लोगों को बस मैं इतना बताना चाहती हूँ, सब आपके और हमारे सबके बेनिफिट के लिए था। और मैं आपको मोटिवेट करूंगी कि आप आइए, नैप्स में एनरोल करिए, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करिए। अगर आप कोई अपनी स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आज ये स्किल ट्रेनिंग आपकी सिर्फ 3 मंथ्स की जो है, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। इंडस्ट्री से जो आज हमारे को एक फीडबैक मिला कि बच्चे स्किलिंग कोर्स करके आते हैं, बट उनको अगर इतना नहीं पता है छोटी छोटी चीजें, तो हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग अपने स्किल, जैसे अगर आप ग्राम तरंग, शहीद, या जो भी आप इंस्टीट्यूट से हैं, आप उधर अच्छे से फोकस लिए अपनी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कीजिए, एंड देखिए वो आपका कितना पेड ऑफ होगा। और रेस्ट, AMH SSC is here to always help you in your journey. Thank you so much and all the best. Thank you so much, ma'am. Thank you, Gaurav. And हाँ, most importantly, मैं अपनी टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी। श्रीधर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, फॉर योर सपोर्ट। गौरव की एक्सटेंडेड सपोर्ट, सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना, सब बच्चों को बुलाना, थैंक यू सो मच गौरव। हिमांशु, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, एंड आपने जो इंसाइट्स अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के शेयर किए, आई एम रियली थैंकफुल, एंड आई एम श्योर कि वो बच्चों को भी हेल्पफुल हो। एंड अजीत लाकरा जी सर अभी है नहीं, मैं उनको अभी आई विल शेयर माय थैंक्स, बट सीरियसली हम लोगों को इंडस्ट्री साइड से उनसे काफी कुछ इंसाइट्स हमें भी सीखने को मिले कि क्या चैलेंजेस उनको आते हैं और हम किस तरीके से उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे उस चीजों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में। सो थैंक यू एवरीवन। तो कैन वी Shall I close the session? Okay sir, thank you. Okay, thank you Kirti. Thank you so much, Sridhar Thank you sir. Thank you all. Himanshu, Gaurav, thanks, very well done. Awesome. Thank you everyone.